A very good morning to all, the guests, the dignitaries, and all others who have gathered for this second day of the conference, Rashtriya Vichar Manthan. I welcome you for this third session and first of the day. The topic is Dr. Lohia and civil liberties. I call upon the moderator of the session, Advocate Cleophas Almeida Coutinho, to kindly come up and have a seat on the dais. I request Mr. Ullas Gaonkar, the Secretary of Kokani Bhasha Mandal, to kindly give away the shawl and the memento for the program. Advocate Coutinho is one of the senior lawyers of Goa, hailing from a small village of Asolna, the same as that of Dr. Julião Menezes. He is a vociferous voice on civil liberties in Goa. Any scar on civil liberties and you would see a big long article on any Goan daily written by him. He has been a guide to many young lawyers in Goa and he's also been teaching at the subject of constitution in Kare College of Law. I welcome you, sir. We are our first panelist for the day, Dr. Suresh Khairnar. So kindly come up and take your seat on the dais. I request Ullas Gaonkar again to welcome sir with a shawl and memento. Dr. Khairnar has been a full-time member of Rashtra Seva Dal in Vidarbha region. He was during the emergency in Amravati jail. In 1977, he was founder of Chhatra Yuva Sangatna. He was also the visiting professor in a leading college in Pune. He has received many awards and he has been on fact-finding committees of communal riots in Calcutta, then Bhagalpur communal riot, Mumbai communal riots, and he has received many awards like Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha, Government College of Arts and Commerce. Then he has received awards like Maharashtra Foundation, Samajik Kritanyata Nidhi, Rashtriya Seva Dal, Muslim Satyashodhak Samaj Award of Jyotiba Phule, Akola, Mahatma Gandhi, Ujjain. We welcome you, sir, for this wonderful session, such a multifaceted personality. Thank you for gracing us on this occasion. I call upon our next guest, T. Gopal Singh ji. T. Gopal Singh ji has been a retired judge of Judicial Magistrate First Class and served the judicial service for last 20 years. He joined the socialist movement in 1969, participated in the agitation for separate state of Telangana. He has been jailed for more than 5 times for this. He participated in the Angrezi Hatao Andolan. Currently, he is working as the judicial member of Telangana state, appointed under the RTI Act. We welcome you, sir. The next panelist is Mr. Kunal Sarangi. Kindly welcome to the dais. I request the Secretary of Kokani Bhasha Mandal, Ullas Gaonkar, to give away the shawl and memento. Kunal Sarangi is a young BJP leader, former member of Parliament, former member of Legislative Assembly of the Jharkhand Assembly. He is the alumni of MIT and also of Harvard. He has been called in various countries to give talk and participate in various conferences. We welcome you, sir. And the last panelist for the day is Ms. Anvesha Singhbar.
I request the Secretary of Kokani Bhasha Mandal to kindly give away with the shawl and the memento. Anvesha is a Konkani writer who has received Yuva Sahitya Akademi Award for her book Solos. She has raised her voice in various newspapers regarding the Ram Sene in Goa. She is the president of first women president of a 59-year-old non-government organization, Kokani Bhasha Mandal. We welcome you, ma'am. Now I request the moderator to kindly take over. Dr. Kairnar, Gopal Singh, Kunal Sarangi, Anvesha Singhbal. Ladies and gentlemen, I am indeed thankful to the organizers, Dr. Ram Manohar Lohia Research Foundation and Rashtriya Vichar Manthan for giving me this opportunity of moderating this session on civil liberties. 2 days back, we celebrated the Law Day. On 26th November 1949, the Constitution was adopted to be enforced on 26th January 1950. The founding fathers gave us a republic, and the power was given to the citizens to ensure liberty, equality and fraternity. But the governments of the day somehow took over that power from the state and weakened the citizens. Civil liberties has been the bedrock of our Constitution. It is civil liberties that give a new dimension to our Constitution. In fact, in 1870, a sedition law was brought into the country, and the framers of the Constitution deliberated on 1st December 1948 as to why it should be done away with. The Constitution's conscience keeper, K.M. Munshi, Bhupinder Man and a Raja, Ghosh, saw to it that it did not have a place in the Constitution, and the Constituent Assembly voted out sedition. It came thereafter, after independence. After the Republic, again it was brought in. Today, if we look at the functioning of our democracy, there are some studies made on Indian democracy, and especially after the COVID restrictions, the civil liberties position has been quite bad throughout the world and worse in our country. The COVID restrictions we have tolerated, COVID restrictions we have suffered. Maybe they were in our interest.
maybe we could argue that they could have been implemented better. But in any case, we accepted them because it was said that they were in public interest. But during these 2 years, the civil rights position has deteriorated so much that a COVID season, Sedition and Unlawful Activities Prevention Act, a draconian criminal law, has been the flavor of this season. And after the COVID season and before the COVID season, if we look at how our democracy has performed at the international level, the position is no good. See, the Freedom House NGO from Washington says we are a flawed democracy. So we have been put in a category of a flawed democracy. The UK Economist Intelligence Wing says we are partly free, while the VDAM Institute from Sweden says we are no longer a democracy. We are an elected autocracy. Now, from where to where? And within a period of nearly, say, last 5 years, we are considered no longer a democracy. And why so? We are no longer a democracy because civil liberties have come under severe strain. Right to dissent, right to speak, jail for people who criticize the government, journalists, media professionals, everybody has come under this severe state invasion of their rights. And that is where almost every international body dubs our democracy to be no longer a democracy. Loya was only 28 years old when he wrote that book, Civil Liberties Struggle. It was published for Foreign Department of the All India Congress Committee, published at Allahabad, with a foreword by Nehru. At the age of 38 in the year 1936, at the age of 28 in the year 1936, he had highlighted the position in England at that time, America, France, and the position in India. And he was very clear that civil liberties would be the bedrock of our democracy. And we will find that when our constitution was enacted, almost every possible right, freedom was given to citizens. And after 70 years, what do we see? We see that the constitution has been amended 103 times, but by and large it is intact. But the written constitution remains the same, but the constitution that is functioning is completely different from what was envisaged. But in this COVID season, there is a great silver lining. Also on the Law Day, the farmers completed 1 year of their struggle. And that 1 year of the struggle, they scored a major civil rights victory. You will find that the civil rights victory has been because they had to fight to assemble. They had to fight to speak. And they had to fight to agitate. And against all odds, they stood together, and I consider it a great civil rights victory. I would say that anybody
who wishes to stand by the vision of the Constitution, and as long as there are some people fighting for the Constitution, for the vision of that Constitution, there is still some hope. With these few words, I request Dr. Suresh Khairnar to make his presentation. आज के कार्यक्रम के संचालक, मेरे सह पैनलिस्ट और सामने बैठे हुए साथियों, आज एमएस कलबुर्गी जी का 83वां जन्म दिवस है। हम मानवाधिकारों के ऊपर बात करने जा रहे हैं। धारवाड़ कोई यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 150 पौने 200 किलोमीटर होगा। आज वो जिंदा होते तो 83 साल के होते, 83। और मारने के सूत्र गोवा से ही है, इसलिए मैं मानवाधिकार के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एमएस कलबुर्गी और उनके साथ और भी 3 हमारे ही दोस्त थे, दाभोलकर हो, गौरी हो, वो तो हमारे लोहियाइट परिवार की ही बच्ची थी, और कॉमरेड पानसरे। जिस मुल्क में इस ढंग के लोग मारे जाते हो, ये मैं मीटर मानता हूँ इस देश के मानवाधिकार। डॉक्टर साहब का आपने रेफर किया, मैं उम्र के 10-15 साल का था तब से इंदुमती केलकर, आचार्य केलकर की सोबत में रहा। तो मेरे हिसाब से भारत की राजनीति में डॉक्टर आम्बेडकर के बाद मानवाधिकार के बारे में सबसे सजग अगर कोई राजनेता रहा होगा तो राम मनोहर लोहिया। गोवा में स्वास्थ्य लाभ के लिए आने वाला आदमी तोड़ डाला था शरीर पूरा, लाहौर के किले से लेकर आगरा तक, बर्फ की लादियों पे लिटा के क्या क्या करके। मानवाधिकार का हनन क्या होता है, इसका जीता जागता अनुभव खुद उन्होंने अंग्रेज़ों और उसके बाद में फिर यहाँ का जो भी तफसीलें कल परसों से काफ़ी कहा जा रहा है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों का टेस्ट भी डॉक्टर साहब ने किया था। और ऐसी शख्सियत कि जो अमेरिका में किसी और कारण से जाती है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी होटल में बैठने को लेके कोई वेटर आके उनको कहता है कि सर दिस इज़ नॉट योर सीट, और तब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्यों, क्या अमेरिकन महिला साथ में होने के बावजूद वो वही प्रोटेस्ट करते हैं, अरेस्ट होते हैं, कॉल करते हैं होटल वाले पुलिस को, बाद में गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट माफ़ी मांगता हो, छोड़ दीजिए। लेकिन मेन सवाल इतना सजग मानवाधिकारों को लेके, अपने सिविल लिबर्टीज़ को लेके, मुझे दूसरा आदमी बाबा साहब के बाद में नहीं याद आता है। बाबा साहब भुक्तभोगी थे। बाबा साहब जन्म से 5000-6000 सालों की गंदी परंपरा की जगह कर पैदा होने के नाते उनका आक्रोश, जैसे गांधी जी बोलते थे कि वो थूकेंगे मेरे मुंह पे तो भी मैंने रुमाल निकाल के मुंह पोंछ के हंस के बात करने की आदत डालनी चाहिए। हुआ है इतना। बाहर टेबल पर आनंद तेल तुमड़े और दुनिया भर के दोस्तों के लिखे हुए किताबों का अंबार लगा हुआ है आज। अच्छा है, कम से कम आज के दिन तो भी उस ढंग के साहित्य का यहाँ पर बिकने के लिए उनको यहाँ पर इजाज़त दी गई है। लेकिन लोहिया जी का मुझे सबसे वैशिष्ट ये लगता कि एक कंपेरेटिवली जो भी उनकी अपनी जात थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कोई दलित कैटेगरी में, वो कोई इसमें आती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस आदमी में इस ऐसी संवेदनाएं कैसे आई होगी, क्योंकि बहुत चीज़ें उसके परिवेश के साथ भी रिलेटेड होती है। लेकिन इसके बावजूद, इसका मतलब ये आदमी जर्मनी में पढ़ा, इस आदमी ने जो भी दुनिया का निरीक्षण किया, इन चीज़ों से उनका खुद का जो भी कुछ विकास हुआ। गोवा का स्ट्रगल का भी रीज़न वही है कि शादी की पत्रिका, जिसको इनविटेशन कार्ड बोलते, उसको तक पुर्तगाली पुलिस जब तक सेंसर नहीं करेगी तब तक आप छाप नहीं सकते। बाकी साहित्य आज़ादी को लेकर और अन्य बातों को लेकर तो वो दूर की बात है। वो आलम डॉक्टर साहब ने सुना और 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने इसी मड़गांव में
जो भी कुछ किया है वो आप लोग उसको भी तफसील से सुन रहे हैं, आपके हाथों में एक्शन इन गोवा भी है। तो ऐसे आदमी के स्मरण में मानवाधिकार की चर्चा जब कर रहे, मैं 100% आपसे सहमत हूँ। दुनिया के और भी मुल्कों का थोड़ा बहुत हमारा आकलन है, जाना है। भारत का मानवाधिकार का रिकॉर्ड आज की तारीख में विश्व के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे वर्स्ट है। अकेले कश्मीर में मुझे परवेज इमरोज मिले, जो PUCL के स्टेट प्रेसिडेंट है। खैरनार साहब, ये मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ, अकेले कश्मीर में बिलो 30 10,000 बच्चे, अकेले कश्मीर में। महान महाराष्ट्र का हूँ मैं बगल से, 35,000 से ज़्यादा बिलो 30 बच्चे पर्टिकुलर कम्युनिटी के महाराष्ट्र की जेलों में बंद है। नॉट प्रेजेंट गवर्नमेंट, नॉट प्रीवियस गवर्नमेंट, बहुत पहले से चला आ रहा है सिलसिला। राणा आयुब को मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया है आज से और 10 साल पहले। वो आंकड़ा बढ़ा भी होगा, लेकिन मैं तब का आंकड़ा बताता हूँ। महाराष्ट्र का अकेले का 35,000। और इस ढंग से टोटल भारतीय जेलों का अगर पूरा आप आकलन करोगे तो कम से कम कुछ लाख लोग जेलों में बंद पड़े हुए हैं, और उसमें से कई लोगों के ऊपर आरोप पत्र भी नहीं दाखिल किया गया है। वो किस गुनाह में है, किस लिए है, ये भी उनको पता नहीं है। ऐसे, और ये कौन है? दलित, ये कौन है? आदिवासी, इस ढंग के, और अल्पसंख्यक। अब एक नया जो फंडा शुरू हो गया है कुछ सालों से, अल्पसंख्यक समाज आनंद फानंद में, बस वो अल्पसंख्यक समाज का है, इतना ही पर्याप्त हो जाता है। और मुझे आजमगढ़ से एक फ़ोन आया, जनाब मैं आजमगढ़ के आपके कार्यक्रम का एंकर था फलाना। मैंने कहा ठीक है, मैं देश भर में घूमता हूँ, मैं सब एंकर को ध्यान नहीं रखता, आपकी बात क्या है? मेरे बेटे को आज सवेरे नागपुर रेलवे स्टेशन पे उतार लिया गया है, आप कुछ करते क्या? मैं कुछ नहीं किया था। 20 मिनट के बाद में दोबारा फ़ोन आया, साहब मैं कैसे बोलूँ आपसे? मैंने कहा बोलिए तो, मुझे भी एक बेटा है, मैं भी एक बाप हूँ। IB ने मुझे कहा कि अगर डॉक्टर खैरनार को आप इन्वॉल्व करोगे तो फिर हम 26/11 में डाल देंगे आपके बेटे को। अभी तो हम सिर्फ उसको, वो हैदराबाद के अजीम प्रेमजी की इंस्टीट्यूट में स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट था, 40-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह थी। विद इन सम मिनट्स अजीम प्रेमजी ने आउट किया उसको। मैं आजमगढ़ बाद में जब गया, पूछा मतलब कैसे जनरेशन की जनरेशन बर्बाद की जा रही है। मैंने कहा वो बच्चा क्या कर रहा है? साहब वो मोबाइल रिपेयरिंग की एक छोटी सी टपरी टाइप की दुकान चला रहा है, जैसा पान ठेला होता है वैसे। इस ढंग के सैकड़ों हजारों की संख्या में अंबार लगा हुआ है। बंगाल में मैं 15 साल रहा हूँ, कैसे कैसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की गई है मैंने अपने आंखों से देखा। मेरी एक दोस्त है, जया मित्रा नाम की, लेखिका है बंगला की, 19 साल की उम्र में उसको उठा लिया था। हनुमान नाम की उसकी अपनी आत्मकथा भी है, जो महाश्वेता देवी को उसने अर्पण की है। तो इस ढंग के, इस मुल्क के आज़ादी के बाद के जेलों के अनुभव बता रहा हूँ मैं। आज़ादी के पहले के छोड़ दीजिए, वो सब बाहर किताबों में दर्ज की हुई है। आज़ादी के बाद के कम अधिक प्रमाण में, रेशो का कोई फर्क नहीं है। मुझे यहाँ आने के पहले कुरियर से ये किताब आई है। ये किताब का नाम है गुजरात बिहाइंड द कर्टन। ऑथर है RB श्री कुमार, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुजरात। ये कोई मेरे जैसा एक्टिविस्ट या कोई और आदमी नहीं, ये सीधा सीधा गुजरात की 35-36 साल की पुलिस सर्विस का बंदा है, जो शायद SP की पोस्ट से शुरू करके DGP आखिरी पद तक जाके रिटायर हुआ है। और 200-300 पन्नों में उसने पूरी कहानी मानवाधिकार का, कैसे ऐसे के वैसे करने वाले लोगों के हाथ में आज मुल्क है, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप उनके हाथ से? वो मानवाधिकार की व्याख्या भी समझेंगे, उन्हें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, हमारी फ्रेम तक उनको समझ में आएगी। और आई होती तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर पीछे जाके देखोगे, कोई लॉ मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है और कोई प्रधानमंत्री भी है, ऐसे लोगों के निज़ाम में मानवाधिकार की उम्मीद करना मेरे ख्याल से बहुत ही यानी होपलेस ऐसी बात है।
तो इसलिए आज की तारीख में भारत 1/4 मुल्क सेमी आर्मी रूल में है। मेरे नागपुर से सिर्फ 100-150 किलोमीटर की दूरी तक गढ़चिरौली से लेके पूरा सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर से लेके ऊपर उत्तर बंगाल नॉर्थ ईस्ट से लेके टोटल पूरा हिमालय क्रॉस करते हुए कश्मीर से लेके और पंजाब तक भी, ये पूरा की पूरा मामला आज सो कॉल्ड जो कानून है उनके अंतर्गत उसमें है। वहाँ बाबा आमटे के बच्चों ने मुझे बोला, दोनों डॉक्टर अभय बंग नाम के दोस्त ने बोला कि सुरेश यहाँ पर हम टोटल सर्विलेंस के भीतर है। ये नागपुर से 150-200 किलोमीटर के अंतर की बात बोलता हूँ। तो जिस मुल्क में आज़ादी के 75 साल में 1/4 पॉपुलेशन को आप सेमी आर्मी रूल में रख रहे हो, आपसा में रख रहे हो, दुनिया भर के कानून में रख रहे हो, उनके हर तरह की बातों पर सर्विलेंस हो रहा हो, इससे ज़्यादा मानवाधिकार का ब्लंट वायलेशन और क्या हो सकता है। किस ढंग से हमारा गढ़चिरौली का आदिवासी जीता है, किस ढंग से दलितों के साथ के मामले, और उन मामलों को देखने के लिए जाने वाले को, मतलब वो जो उलगड़ी में हुआ, उलगड़ी जाने वाले बच्चों को केरला से थे 2 पत्रकार, मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि कभी मेरा केरल के कार्यक्रम के आयोजकों में वो भी थे रिसीव करने के लिए मेरे को। वो जो 2 पत्रकारों को आदित्यनाथ ने उठा लिया, मतलब कोई हादसा हो गया अभी ये लखीमपुर खीरी का, वो हादसे को जाने के लिए, उसको कवर करने के लिए भी आपको, मतलब इस ढंग से, मैं तो इमरजेंसी का भुक्तभोगी हूँ, मैं तो सेंसरशिप का भुक्तभोगी हूँ, ये तो पूरा इमरजेंसी लगी भी नहीं है, सेंसरशिप का कोई कानून भी नहीं, तो उसके बावजूद ये सब बातें हो चुकी है। तो ऐसे मुल्क में मानवाधिकारों का जो भी कुछ रिकॉर्ड होगा, जो कुछ आज क्या है और भय कितना है, मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य लग रहा है। मैं 1 हफ्ता हो रहा हूँ आज, मैं हर रोज 1 या 2 जगह बोल रहा हूँ, कभी 26/11 को लेकर, तो कभी संविधान के ऊपर, तो कभी कुछ। बाप रे, कितनी हिम्मत से बोल रहे हैं आप। कुछ भी नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ जो कुछ घटित हो रहा उलगड़ी से लेके उतनी ही बात बोलने को लेके वो कह रहे हैं कि कितनी हिम्मत है आप में। मुझे खुद को लज्जा हो रही है कि सिर्फ इतनी सी बातें बताना, जो आप और सबको पता है, वो मेरे मुंह से आना ही हिम्मत की बात हो गई। मुझे लज्जा महसूस होती है। अंतिम में मेरे प्रिय कवि रहे हैं, अभी यहाँ आते आते मुझे वो मिला है, वो पढ़कर मैं रुकना चाहूँगा। ये दुष्यंत कुमार है। ये जो शहतीर है, पलकों पे उठा लो यारो, ये जो शहतीर है, पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो, दर्द ए दिल वक्त को पैगाम भी पहुंचाएगा। इस कबूतर को जरा प्यार से पालो यारो, लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे। ये मानवाधिकार की तरफ इशारा करता है। लोग हाथों में लिए बैठे हैं अपने पिंजरे, आज सैयद को महफिल में बुला लो यारो, आज सैयद को महफिल में बुला लो यारो, आज जीवन को उधेड़ो तो जरा देखेंगे, जरा जीवन को उधेड़ो तो देखेंगे, आज संदूक से वो खत तो निकालो यारो, रहनुमाओं के आदा पे फिदा है दुनिया, रहनुमाओं के आदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता? क्योंकि कल मुझे हमारा एक ग्रुप मिला था जिस संगठन का मैं कुछ रहा हूं, क्या कर सकते हैं बोले, हताशा का बोध था। इस बहकती हुई दुनिया को संभालो तो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता। ये मैं हमारे उन दोस्तों को भी मैसेज दे रहा हूं, कैसे आकाश को सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, लोग कहते थे कि ये बात नहीं कहने की, तुम तो कह दी है तो कहने की सजा लो यारो। Thank you, Dr. Kairnar. Now T. Gopal Singh shall make a small presentation and thereafter discussion.
धन्यवाद। मैं सबसे पहले इस आयोजन के आयोजकों हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रिसर्च फाउंडेशन और कोंकणी भाषा मंडल और रविंद्र भवन के ऑफिसर्स स्टाफ सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया यहाँ पर और हम सबको मौका दिया कि यहाँ पर आकर हम एक दूसरे बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिले और समस्याओं पर डिस्कस करें। विशेषकर हमारे भाई अभिषेक रंजन सिंह जी, पिछले महीने व्यक्तिगत रूप से उनको देखा, पिछले 8 महीने से लगातार वो जब भी फ़ोन पे बात होती कहाँ पर है क्या है तो बोलते गोवा में हूँ, फला ये जगह हूँ, वहाँ पर ये फ़ोटो वो। आज तक हमको, मैं 50 साल से समाजवादी आंदोलन में था लेकिन मुझे पता नहीं था कि गोवा में डॉक्टर लोहिया की स्टैचू है, गोवा में एक मैदान लोहिया के नाम पे है या एक चौक लोहिया चौक के उनके नाम से है। ये बिकॉज ऑफ अभिषेक रंजन सिंह हम लोगों को ये सब पता चला कि गोवा आंदोलन लोहिया किए वो पता था लेकिन लोहिया के नाम से इतने यहाँ पर है वो हम किसी को पता नहीं था। मैं दावे के साथ कहता हूँ हिंदुस्तान में कोई समाजवादी को इसका पता नहीं था, सिर्फ बिकॉज ऑफ अभिषेक रंजन सिंह हम लोग सब इससे परिचित हुए। और मैं फिर और गोवा गवर्नमेंट से और सब आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लोहिया मैदान का जो रिपेयरिंग चल रहा है उसको अच्छे ढंग से वहां पर करे और एक अच्छा स्मारक डॉक्टर लोहिया का वहां पर बनाए। अब मैं आज के विषय पे आऊँगा। अभी हमारे भाई खैरनाथ जी ने काफ़ी विस्तार से डॉक्टर लोहिया के जो अनुभव थे अमेरिका में और गोवा में उसके बारे में आपको बताया। डॉक्टर लोहिया जहाँ भी जाते थे जो भी उनको दिखती थी नाइंसाफ़ी वो उसके ऊपर खड़े हो जाते थे। उनका नारा था, हम लोग जब हम स्टूडेंट लाइफ में समाजवादी युवजन सभा में नारा लगाते थे, हर जोड़ जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो जहाँ भी कुछ भी नाइंसाफ़ी उनको दिखती थी सबसे पहले वो खड़े हो जाते थे और खुद व्यक्तिगत तौर पे उसका विरोध करते थे। या आप जब भी सिविल लिबर्टीज़ की बात होंगी तो बगैर डॉक्टर लोहिया के जिक्र के वो बात कंप्लीट नहीं होंगी। महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया और जैसा भाई खैरनाथ जी ने कहा अम्बेडकर जी और मार्टिन लूथर किंग, ये सब लोग, ये 3-4 लोग ही है जो सिविल लिबर्टीज़ के बारे में अपना आंदोलन किए और इसको इतना संघर्ष करे। डॉक्टर लोहिया जैसा अभी मॉडरेटर जी ने कहा 1936 में उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, कांग्रेसी विदेश विभाग के सचिव थे। फिर उसको रिपब्लिश हुआ, कलकत्ता से दिनेश दास गुप्ता जी ने उसको रिपब्लिश किया 1970s में। कभी उसकी कॉपी है मेरे पास हैदराबाद में। अभी काफ़ी लोग उसको डिमांड कर रहे हैं कि फिर एक बार उसको पब्लिश किया जाए और सही बात है, वो पब्लिश फिर रिपब्लिकेशन करने के लायक है, काफ़ी डिमांड है उसका। वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर उसको रिपब्लिश हो। तो डॉक्टर लोहिया के जो विचार वो पुस्तक में थे वो आज से कम 70-80 साल पहले उन्होंने उसको लिखा, वो आज भी रिलेवेंट है। जैसा कि अभी खैरनाथ जी ने कहा कि पिछले 2 साल से 3 साल से जितना सिविल लिबर्टीज़ का हनन हिंदुस्तान में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। कोई भी आप कुछ भी बात क्रिटिसाइज करो सरकार को तो उसको देशद्रोह का मामला करके उसको अंदर कर डाल देते हैं। तो ये खाली पार्टी के खिलाफ बोलना या सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह कैसा होता है? हर 2 आदमी को अपने अपने विचार रखने का हक है। मेरे विचार कुछ रहते, खैरनाथ जी के विचार कुछ रहते। मैं अगर उसको विरोध करूंगा तो बोलेंगे कि देशद्रोह कर रहे, ये बहुत ही गलत बात है। इसके ऊपर सब लोगों को विचार करना चाहिए गंभीरता से। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी है हिंदुस्तान में पिछले 2-3 साल से। प्रेस तो पूरा कब्जा हो गया है, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक चैनल वगैरह पे कोई अपना बात नहीं रख सकता। सब एक ही सरकार की बोलो या एक ही विचारों की बात चल रही है, उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। जैसा इमरजेंसी में हुआ था या उसके पहले भी हुआ था वही हालत, अनडिक्लेयर्ड हालत हिंदुस्तान में है। जैसा कि आपको मालूम है सबसे ज़्यादा 1970s में नक्सलाइट मूवमेंट जब शुरू हुआ
तो उसमें सिविल लिबर्टीज का काफ़ी हनन हुआ और वहाँ से कुछ संस्थाएं बनी सिविल लिबर्टीज के बारे में आंदोलन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले कलकत्ता में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स APDR का गठन हुआ 1972 में, और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश सिविल राइट्स प्रोटेक्शन सोसाइटी बनी APCLC इन 1974, और फिर बाद में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ये और सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, इन संगठनों का गठन हुआ। तो जब से कुछ कार्यकर्ता, कुछ संगठन इसके और कर रहे हैं और लगे हुए हैं, जहाँ भी कुछ मालूम होता है वो लोग जाते हैं उसके तो इसको बारे में काफ़ी करना अभी बहुत ज़रूरी भी है। जैसे बहुत ज्वलंत इशू है ये हिंदुस्तान में, अनडिक्लेयर्ड जो इमरजेंसी लगी, लोगों का सिविल लिबर्टीज का हनन हो रहा है। जैसा कि मानव अधिकार की बात कर रहे हैं खैरनार जी, तो मैं आंध्र प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी मेंबर के काम किया हूँ एक कार्यकाल। वहाँ पर हमारे चेयरमैन जस्टिस सुभाषन रेड्डी थे। उन्होंने मानव अधिकार को काफ़ी विस्तार से डेफिनेशन दिया और उसका विस्तार से उपयोग किया। वो बोलते थे फ्रॉम वूम टू टूम, माँ के पेट में गर्भस्थ शिशु से लेके टूम तक, जब तक उसकी अंतिम क्रिया नहीं होती या उसको क्रिमेशन नहीं होता, उसके लिए ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत है। माँ के पेट से बच्चा पैदा होने के पहले भी उसको हेल्थी पैदा होने का अधिकार है। तो उसके लिए उसको माँ को उसको हेल्थी फूड देना है, न्यूट्रिशन देना है कि ताकि उसका बच्चा हेल्थी, स्वस्थ और पैदा हो। और एक मरने वाले आदमी को भी, वो कौन सी भी रिलीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको अच्छे ढंग से उसका अंतिम क्रिया होना चाहिए, वो भी ह्यूमन राइट्स है। तो उनका हर जगह सबसे पहले यही बोलते थे, जहाँ भी जाओ, फ्रॉम वूम टू टूम ह्यूमन राइट्स वी हैव टू गिव to the child in the womb of a mother and to the person last for cremation and burial। इस तरह ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उन्होंने यहाँ तक सिविल राइट्स को भी, जो प्रॉपर्टीज रहती है उसमें भी वो ह्यूमन राइट्स के अंदर डेफिनाइट करके ऑर्डर कर देते थे। जहाँ बूढ़े माँ बाप है, बच्चे उनको नहीं देख रहे हैं, उनको प्रॉपर्टी, आजकल एक नया फैशन हो गया लड़कों में कि भाई मैं आपके नाम पे रहे तो लोन नहीं मिलता, हमारे नाम पे प्रॉपर्टी कर दो हमको लोन मिलेगा। माँ बाप उनको कर देते हैं, लेकिन 2-4 साल के बाद फिर उनको नेगलेक्ट करना शुरू हो जाता है। वैसे केसेस भी हमारे पास आते थे, तो उस पर भी वो ऑर्डर दे देते थे कि भाई ऐसा ऐसा होगा, ये प्रॉपर्टी इनकी है, ये बच्चे को बेदखल करो, इसको रखो, माँ बाप को कमरा दो, प्रोटेक्शन दो। लोग बता रहे आप कैसा, ये सिविल राइट्स, सिविल रूल्स में आता, सिविल कोर्ट में आता, ह्यूमन राइट्स में कैसे? तो बोलते कि माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की भी ह्यूमन राइट्स है, वो भी अच्छे तरीके से अपने अंतिम समय में एक अच्छे ढंग से रहने का उनको राइट है। इस तरह वो काफ़ी विस्तार से उसको डिफाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करे। उनके कार्यकाल में आंध्र प्रदेश में, उस समय के आंध्र प्रदेश में अच्छा काम हुआ ह्यूमन राइट्स का। लोग ह्यूमन राइट्स समझते हैं कि भाई जो पुलिस का जुल्म होता है, जो लॉकअप में रखते हैं, जो पुलिस मारते हैं, वही ह्यूमन राइट्स। वैसा नहीं है। ह्यूमन राइट्स हर फील्ड में, ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज का दखल रहता है। उसको उस ढंग से सोचना चाहिए। बड़े बुजुर्ग है, कोई दलित है, कोई किसान है, जो समाज के तबके है, उन सब के भी राइट जो रहते हैं उसको ह्यूमन राइट्स की तरह ही देख के, सिविल लिबर्टीज की तरह देख के उसको करना चाहिए। ये नहीं कि पुलिस के जुलूम या पुलिस के एक्शन के बारे में, वहाँ तक ही नहीं है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट हर क्षेत्र में उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में डी.के. बसु केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी कि पुलिस के अरेस्ट करने पर उसको कैसा रखे। अरेस्ट करे बाद भी उसको राइट रहता है डिटेनी को, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, डॉक्टर के सामने प्रोड्यूस करना, उसके किसी रिलेशन को इन्फॉर्म करना इमीडिएटली, ये हम तुम्हारे रिश्तेदार को अरेस्ट करे हैं भाई। तो डी.के. बसु बहुत हिस्टोरिकल केस था, उसमें काफ़ी गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी।
इस तरह सिविल लिबर्टीज में काफ़ी काम करना है हम संगठनों को, हमारे जैसे लोगों को। अभी आगे जाके और हालात ख़राब होंगे। तो जैसा भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर लोहिया, सिविल लिबर्टीज का जब भी जिक्र निकलता है डॉक्टर लोहिया के बगैर वो पूरा नहीं होता। तो लोहिया के अनुयायियों को ही, लोहिया के साथियों को जो मानने वाले हैं उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है कि भाई इसके बारे में संगठन करे, इसके बारे में लोगों को जगाए, प्रेस में बुक्स पब्लिश करे, पैम्पलेट्स पब्लिश करे, इसकी ज़्यादा प्रचार करके एक लोगों का मन बनाना चाहिए कि बस सिविल लिबर्टीज़ का जहाँ भी हनन हो उसके बारे में हम लोग अपोज करें। हुए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। जेल के बगैर डॉक्टर साहब बोलते थे जेल फावड़ा यही अपने संघर्ष के, वोट जेल और फावड़ा ये 3 हथियार है लड़ने के। तो जो वो फावड़ा यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क, एक्टिव वर्क, और जेल तो सत्याग्रह और वोट इलेक्शंस, ये 3 हथियार यूज़ करने से समाज में बदलाव आ सकता है और हम लोगों को बराबर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। आज कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देखो आप, कहीं कोई सत्याग्रह, कहीं कोई संघर्ष की कहीं न्यूज़ नहीं मिलती आपको। बड़े बड़े मीटिंग कर लेते हैं, हर पार्टी के लोग जमा कर लेते हैं, पब्लिक को अपना बोलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई नेता, कोई भी पार्टी संघर्ष की ओर या आंदोलन की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। काफ़ी विषय है आंदोलन करने के, लेकिन सब अपने खाली वोट की राजनीति, इलेक्शंस करना, उसको वोट बटोरना, उसी में लगे हैं। सभी पार्टी विदाउट एनी एक्सप्रेशन दे आर ऑल एंगेज इन मोबिलाइजिंग पीपल फॉर वोट, नॉट फॉर देयर वेलफेयर और फॉर उनकी क्या तकलीफ़ें देखने के। तो इस समय ऐसे हमारे जैसे लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है। सब लोग अब आगे आए और विशेषकर सिविल लिबर्टीज़ के बारे में डॉक्टर लोहिया के जो विचार थे उसको हम फॉलो करते हुए अगर करेंगे तो हालात बेहतर होंगे। धन्यवाद। Thank you, Dr. Gopal Singh. Now, our young ex-MLA from Jharkhand, Kunal Sarangi. जोहर। सबसे पहले मैं राष्ट्रीय विचार मंथन कार्यक्रम के जो आयोजक साथी हैं, यहाँ के जितने भी महानुभाव इस हॉल में आज उपस्थित हैं, मेरे सह पैनलिस्ट और जो सभी अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको झारखंडी जोहार कहता हूँ, अपना अभिवादन देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आज इस मंच से लोहिया एंड सिविल राइट्स जैसे विषय पर बोलने का सौभाग्य देने के लिए। इससे पहले कि मैं उस विषय पर जाऊं, अगर आप लोगों को अभी 26 से 11 की बातें भी हो रही थी, याद होगा जब ताज होटल पर हमला हुआ था और उसके कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था ताज होटल के पास में। टी शर्ट्स पर उन्होंने लिखा हुआ था नो प्रोटेक्शन नो टैक्सेशन। सिविल राइट्स, जिस तरह की सिविल राइट्स की बात डॉक्टर लोहिया कहते थे, आज की युवा पीढ़ी के लिए उसे समझने के लिए एक बहुत सीधा सा ये उदाहरण है। क्या सिर्फ ताज होटल पर ही हमला हुआ था? क्या सिर्फ वो लोग मारे गए थे जिनसे ताज होटल को सरोकार रहा है या जिनका सरोकार ताज होटल से रहा है? और भी अन्य जगहों पर बम के धमाके हुए थे, काफी संख्या में लोग मारे गए थे। उनके प्रोटेस्ट को मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया, उनके प्रोटेस्ट को पहले पन्ने की खबर नहीं बनाई। खबर उनके बनी जो लोग अराइव्ड हैं, जो समाज में स्थापित हैं, बड़े नाम हैं, जिनका ताज होटल से वास्ता रहा है। यह सपना डॉक्टर लोहिया का नहीं था। डॉक्टर लोहिया का सपना था कि जब नागरिक स्वतंत्रता की बात हो तो समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए, जब उसकी बात, जो उसकी आकांक्षा है अपने लोकतंत्र से, अपने शासन से, अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो उसे भी प्रोटेस्ट जो करने का अधिकार है, जो राइट है, वो उसके साथ भी उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके पास भी वो अधिकार रहना चाहिए। उन्होंने अगर गांधी के सपने को, नेहरू की इच्छा को और सुभाष चंद्र बोस के जो उनके कर्म थे उसका प्रतिनिधित्व करने का जो तरीका था डॉक्टर लोहिया का, मैं चूंकि युवा पीढ़ी से आता हूं और राजनीति में भी हूं, तो आज अभी मैं मेरे पूर्व के वक्ताओं को सुन रहा था, बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने दो बातें रखी कि आज लगभग हर राजनीतिक पार्टी की वही स्थिति है।
मैं फिर इसे कहता हूं, यह भी एक अनदर लेवल ऑफ जनरलाइजेशन है, हर राजनीतिक पार्टी की नहीं, कुछ राजनीतिक नेताओं की यह स्थिति है जिसके चलते वो पार्टी भी ब्रांडेड हो जाती है उस तरह से। जिस तरह से किसी व्यक्ति के कारण राजनीति को लोग खराब कहते हैं। मैं जब लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर विदेश से भारत आया था राजनीति करने के लिए, तो मुझे हर उस सेमिनार में, हर उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ के इंटरेक्टिव सेशंस में लोग ये पूछते हैं, आप इतनी अच्छी जॉब छोड़कर यहां झारखंड में जंगलों में घूमने क्यों आए? हम सब बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन राजनीति में कोई आना नहीं चाहता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम MS धोनी, नो वन वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। इफ यू डोंट गो टू द ग्राउंड, हाउ कैन यू बिकम MS धोनी? तो ये जो सिविल लिबर्टी की बातें हैं, ये तभी धरातल पर उतरेंगी जब मेरे आपके जैसा युवा, हर वो युवा जिसे इस देश पर अधिकार है, जिसका इस देश से सरोकार है, वो सिविल राइट्स की बात करे। यहां बैठे हॉल में सारे लोग, इन्होंने पूरा अनुभव रखा है, अपना पूरा जीवन इन्होंने सिविल राइट्स को देखा है, सिविल राइट्स को समझा है। अगर इन लोगों से प्रेरणा लेकर हर युवा यह सोचे कि मुझे सिविल राइट्स को इंप्लीमेंट कराना है धरातल पर, तो सरकार किसी पार्टी की हो, शासन पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उसे सिविल राइट्स की अहमियत को समझना होगा और उसका जो अधिकार है उसे यहां पर भारत की जनता को देना पड़ेगा। डॉक्टर लोहिया ने 4 चीजों का रिक्वेस्ट किया था महात्मा गांधी जी को कि हमें जो पहले के इन्वेस्टमेंट जितने भी हुए हैं किसी देश में, किसी देश के द्वारा, उसका कैंसिलेशन होना चाहिए, पास्ट इन्वेस्टमेंट्स का। एक जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज हैं उनको फ्रीडम रहना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए। जो पैसेज है लोगों का पूरे दुनिया में, देश की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं से ऊपर उठकर उनको पैसेज देना चाहिए, एक अनऑब्स्ट्रक्टेड पैसेज देना चाहिए। और चौथा, ग्लोबल सिटीजनशिप। आज क्रिप्टो की बात हो रही है, हम लोग सारे लोग क्रिप्टो की बात करते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो? क्रिप्टो एक ग्लोबल करेंसी है। अब यहां डॉलर है, कहीं पे पाउंड है, कहीं दिरहम है, कहीं रूबल है, कहीं कुछ है। तो जो इन्फ्लेशन चेंज होता है उस तरह से इकोनॉमी चेंज होती है। आज आप भारत में जितने रुपए में एक अच्छी कॉन्टिनेंटल डिश खा सकते हैं, उतने पैसों में इंग्लैंड में आप एक सैंडविच भी नहीं खा सकते। इस फर्क को मिटाने का ही ये क्रिप्टो करेंसी है, जो ग्लोबल करेंसी की बात आ रही। तो वही ग्लोबल सिटीजनशिप, कितना बड़ा विजन था आज के इतने सालों पहले कि वो ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करते थे। अभी कुछ दिनों पहले मैं क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़ा हूं और बहुत सारे जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं भारत के, मेरे अच्छे मित्र हैं। अभी जब वर्ल्ड कप T20 का इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई में हो रहा था, मैं भी वहां स्टेडियम में मौजूद था। मेरे पास में एक दुबई के सिटीजन है, वो बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इतने सालों से दुबई में हैं, आखिर दुबई की जो प्रोस्पेरिटी है, मैं तो समझता हूं लंदन और न्यूयॉर्क से भी बेटर प्लेस्ड है दुबई। अगर आप वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, उनके विजन को देखें, तो क्या कारण है? उन्होंने बहुत एक सीधे लाइन पे एक वाक्य में पूरा वाक्य बताया। उन्होंने कहा कि मुझे जो लगता है यहां धर्म नहीं है दुबई में, इसलिए दुबई ने इतनी प्रगति की है। यहां धर्म नहीं है। आप जिस धर्म का पालन करते हैं, आप साइलेंटली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप कोई फेथ को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, आप सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर अगर यहां पर कोई नौटंकी करना चाहेगा तो वो सरकार उसे टॉलरेट नहीं करेगी, वो कोई भी धर्म। और इसी का कारण है आज दुबई यहां पर पहुंचा है। तो हम युवाओं को यह समझना पड़ेगा, आखिर ये धर्म वाली दुकान चुनाव के समय में क्यों खुलती है? अगर हम इस दुकान से खरीदारी करना बंद कर देंगे तो बेचने वाले भी इसको बेचना बंद कर देंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच होता है और जो भारतीय खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक कर मैदान पर भारत के लिए खेलते हैं, उसकी 9 महीने की बेटी को रेप के थ्रेट्स मिलते हैं ऑनलाइन। किस सिविल लिबर्टी की बात हम कर रहे हैं? एक क्रिकेट खिलाड़ी जो अपना काम कर रहा है, और हर वो खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है, वो राजनीति का खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट का खिलाड़ी हो, चाहे किसी अन्य क्षेत्र का खिलाड़ी हो, वो जीतने के लिए उतरता है, कोई हारने के लिए नहीं उतरता है। ये जो नैरेटिव सेटिंग आज हो रही है देश में, ये निश्चित रूप से सिविल लिबर्टी का वायलेशन है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्य में, केंद्र में, कुछ लोग आज इस तरह का माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि आप अगर अपनी बातें ऑनलाइन कहिएगा, तभी मेरे पूर्व के वक्ता ने बताया कि वो राष्ट्रद्रोह हो जाता है। सारे लोग नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट अपने घर से दे रहे हैं, अपने हाथ से बांट रहे हैं, कोई भी चौक चौराहे, चाय की दुकानों, हर जगह पर। ये बातें निश्चित रूप से हमें चिंता देती हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, फ्रीडम इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। और जिस एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है कि आज युवाओं को सीखने की जरूरत है, जो मोनोटोनिक माइंड के जो वो खिलाफ थे। हम सभी कोई भी मोनोटोनस चीजों को पसंद नहीं करता है, और वो वही कहते थे कि कोई विचारधारा
बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, हर दिन वो इवॉल्व करती है। जिस तरह से चीजें बदलती हैं उस तरह से विचारधाराओं में भी बदलाव आते हैं। हमें उन बदलावों को समझना पड़ेगा। अगर कोई बदलाव अच्छाई के लिए है तो उसे स्वीकार भी करना पड़ेगा। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि ये जो मोनोटोनिक माइंड से, कैपिटलिज्म कहें आप, इंपीरियलिज्म कहें आप, कोलोनियलिज्म कहें, फैसिज्म कहें, से कुछ भी कहें, इन्हें जब तक आप इनकी बातों के साथ हैं इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जहां आपने क्रिटिसिज्म शुरू की तो इन्हें लगता है कि आप इनके साथ नहीं, आप देश के भी साथ नहीं है। इस बदलाव को स्वीकार्यता जो है, यहीं से ह्यूमन राइट्स और जो हमारे जिस मानवाधिकार की बात हम कर रहे हैं और जो सिविल लिबर्टी की हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत होती है। उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ महिलाओं को अधिकार देने की बात कही थी। हम इसे अपने बेटर हाफ तो कहते हैं, लेकिन हम में से कितने लोगों को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर मेरी पत्नी या मेरी बहन या मेरी मां हर वो काम करना चाहती है जो मैं कर सकता हूं, तो उसे स्वीकार करने की मानसिकता पहले हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। जब कोई मां गर्भधारण करती है तो वो 9 महीने तक कितनी मुसीबतों के साथ, कितनी चुनौतियों को साथ लेते हुए एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन जब वो उन 9 महीनों में होती है, अगर हस्बैंड को घर की ड्यूटी करनी पड़े, अगर उसे उस समय पर भी सिर्फ 7 बजे ही चाय और अखबार चाहिए, तो वो सिविल लिबर्टी का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि वो किस दर्द में है। अगर उस दर्द का एहसास आपको है तो आप निश्चित रूप से, इसलिए जो आज लीव की बात आती है, मैटरनिटी लीव के साथ पैटर्निटी लीव की भी ये बातें होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों को भी वो जिम्मेदारियों का रोटेशन को समझना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम समाज में महिलाओं की जो सहभागिता है उसे सिर्फ रिजर्वेशन के कैटेगरी या सिर्फ पॉलिटिकल स्पीचेस से ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जब कहा जाता था पहले देश में कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहां हैं, वो कहां हैं, अगर इसका सही जवाब आपको चाहिए तो जो लोहिया जी का विजन था सिविल लिबर्टी को लेकर कि हम लोगों को व्यवस्था में शामिल करें, जो बीच की खाई है उसे कम करें, उन्हें एम्पावर करें अपनी बातों को रखने के लिए, उनके जो प्रोटेस्ट हैं उसको एकोमोडेट करें, उसको एक्सेप्ट करें, तो निश्चित रूप से उसका उत्तर भी मिलेगा। जिन्हें नाज था हिंद पर वो यहीं हैं और यहां हैं। मैं बहुत जल्द, क्योंकि सर मुझे बार बार देख रहे हैं मेरी तरफ, वो एक चिट भी हम लोगों को तो आदत है पॉलिटिकल स्पीचेस जब भी हम देते हैं कोई चिट आ जाती है थोड़ी देर में, यू हैव दिस मच ऑफ टाइम लेफ्ट, तो मुझे तो बिल्कुल आदत है, मैं उसी हिसाब से ही प्रेस कर रहा हूं। और मैं जिस धरती से आता हूं, झारखंड आंदोलनकारियों की धरती है, ये प्रोटेस्ट की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, सिदो कानो की धरती है, फूलो जहानो की धरती है, निर्मल महतो की धरती है, और आज के युवाओं को समझने के लिए MS धोनी की भी धरती है, जिसने पूरे विश्व में दिखाया कि एक छोटे से शहर का लड़का जिसके अंदर वो जज्बा है, जिसके अंदर वो पैशन है, वो शिद्दत है, तो वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप पर ना सिर्फ पहुंचता है बल्कि वहां बना रहता है। और वो तब छोड़ता है क्रिकेट को जब उसे लोग ये नहीं पूछते हैं व्हेन, लोग पूछते हैं व्हाई। ये फर्क है। आपको तब क्विट करना चाहिए जब लोग पूछे कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, ये नहीं कि आप कब छोड़ रहे हैं। मैं उस धरती से आता हूं, इसलिए जो आज ये कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ है, आदरणीय लोहिया जी की और सिविल राइट्स की जो परिकल्पना उन्होंने की थी उसे कैसे हम धरातल पर उतार सकते हैं। मैं एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा जो लोहिया जी ने, जब नेहरू जी ने पर कैपिटा इनकम 15 अन्ना का प्रेजेंटेशन जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा दिया गया था उसे सदन पर रखने की बात कही थी, तो उन्होंने उसका विरोध किया था। तो विरोध का अब जो परिकल्पना है आज के परिप्रेक्ष्य में विरोध की, कि आप विरोध कर रहे हैं मतलब आप सब चीजों के लिए उनका विरोध कर रहे हैं, आप सिलेक्टिव प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है 10 बातें हो, मैं 8 पर आपसे अग्री कर रहा हूं, 2 पर डिसएग्री कर रहा हूं, इसका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा कि 3 अन्ना 15 अन्ना, उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि सिर्फ चंद ऊपर बैठे बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा है और जो नीचे स्तर पर हैं जिनका कुछ भी नहीं है, उसके एवरेज निकालकर हम देश की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते। तो ये बातें आज हमारी युवा पीढ़ी को समझनी पड़ेगी कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। मैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात नहीं कहूंगा, वो राजनीति की बातें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर गैर भाजपा दलों की सरकार है, वहां घटनाएं होती है, उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक शब्द नहीं कहते, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट में कोई घटना होती है तो पूरी हाय तौबा मचती है। तो ये एक सिलेक्टिव जो जजमेंट आजकल दिया जा रहा है राजनीति में, इसका हर स्तर पर विरोध करना चाहिए, मैं भी विरोध करता हूं। इसलिए मैं युवा पीढ़ियों से आज यही अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर लोहिया को सही श्रद्धांजलि, आज ये 75वां साल गोवा के क्रांति दिवस का मन रहा है, 60वां साल है उनकी आजादी का,
तो जो आजादी 14 साल में नहीं मिली उसका कारण भी यहां के युवाओं को ढूंढना चाहिए कि आखिर कौन से कारण थे जिसके कारण अंग्रेजों से हमने आजादी पा ली, लेकिन पोर्तुगीजों से आजादी पाने के लिए इस राज्य को और 14 साल लग गए। इन कारणों को हम ढूंढें और अपना अवलोकन करें। लोग सीएसआर की बात करते हैं, मैं हमेशा आईएसआर की बात करता हूं, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सभी अपनी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं तो सिविल राइट्स का भी हनन नहीं होगा और जो सामूहिक एक परिकल्पना हो सकती है सम्मिलित प्रयास के माध्यम से समाज के विकास की, वो सभी भी हम कर पाएंगे। आप लोगों ने यहां बुलाकर 2 बातें कहने का सौभाग्य दिया। मैं जाते जाते सिर्फ एक ही शब्द, एक ही बात के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। जो मार्टिन निमोलर ने कहा था, when they first came for the communist, I didn't speak up because I was not a communist. Then they came for the Jews, I didn't speak up because I was not a Jew. Then they came for the Catholics, I didn't speak up because I was a Protestant. Then they came for me, and then there was no one left to speak up. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sarangi. Sarangi has taken civil rights to individual rights. We will have discussion later on. Before that, Anvesha. थैंक यू सर। सबको नमस्कार। आखिर में बोलने के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं और ऑर्गेनाइजर होने से और नुकसान होते हैं क्योंकि सेशन टाइम पे ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आई थिंक आई एम ऑलवेज ऑन एडवांटेज क्योंकि मैं जिन 2 सेक्शन को रिप्रेजेंट करती हूँ उनके बारे में हमेशा कम बोला जाता है या फिर उनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है कोई पॉइंट बनाने के लिए। पहला जो सेक्शन है वो सर्टनली यूथ है एंड आई एम श्योर कुणाल जी विल अग्री विथ मी दैट इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम द यूथ इन टुडेज वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट टुडेज वर्ल्ड। आई थिंक हर एज में यूथ को ब्लेम करना बहुत आसान चीज़ होती है कि आज का जनरेशन कुछ नहीं करता या फिर आज के जनरेशन को किसी भी बात पे कोई ओपिनियन नहीं है। लेकिन जब वो आज का जनरेशन खुद के घर में भी होता है तो फिर उस आज के जनरेशन ने सिर्फ काम करना चाहिए या फिर फॉरेन में जाके पढ़ के वापस आना चाहिए। तो नेबर के घर में आज का जनरेशन है उसने सब बात करनी चाहिए या फिर सामाजिक जो इश्यूज है उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये तो हमेशा हर आई थिंक जनरेशन का प्रॉब्लम है कि वी कीप ब्लेमिंग टुडेज जनरेशन फॉर थिंग्स दैट दे डोंट डू। लेकिन हम इस बात पे बात नहीं करते कि क्यों वो आज का जनरेशन बात नहीं करता या फिर हमारे घर में जो आज का जनरेशन है वो क्यों बात नहीं करता। तो मैं यूथ पे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी। कुणाल जी हैज मेंशन अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है दैट इज सर्टनली आई वुड वांट टू टॉक ऑन दैट सेक्शन एंड दैट इज वुमेन। राम मनोहर लोहिया जी की जो सप्त क्रांति है, जो 7 रेवोल्यूशंस है, उसके पहले ही पॉइंट में उन्होंने मेंशन किया है इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। और जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं मैन और वुमेन की, मुझे लगता है हमने मतलब सालों से या फिर अरसों से हमने सिर्फ वुमेन का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल इस तरह से किया है कि कोई भी राइट हो या फिर कोई भी आंदोलन हो या फिर आप सोचिए जो आज तक राइट्स हुए हैं, व्हेन वी मेंशन अबाउट डेथ्स, men are killed whereas women are raped and killed. So when it comes to women, it's not just about killing, it's rape and killing. तो पहले जो औरत है उसके मान सम्मान पर वहां पे पहले उंगली उठाइए और बाद में जाके उनको मारने की बात आती है। जब भी किसी को धमकी देनी होती है आज के जमाने में भी, तो एक सीधा से सेंटेंस कह दीजिए कि आपके घर में माँ बहन बीवी है क्या। ये आसान सी धमकी हो जाती है और वहां से फिर बाकी सब बातें शुरू हो जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल लिबर्टीज, आई थिंक we certainly need to talk about the greater issues, the bigger issues, लेकिन ये civil liberty इस section से भी शुरू होनी चाहिए, which is more than 50% in India and across the globe. एक ऐसा था, एक टाइम था जब हमने औरतों को या फिर we told women that they are lesser than men, that they are not supposed to get educated, उन्होंने शिक्षा नहीं लेनी है, वो घर के काम अच्छे कर सकते हैं बाहर के नहीं, उनके पास बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है। और आज ऐसा टाइम आ गया कि हमने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि वुमेन आर एट पार विथ मैन, दैट दे कैन बी एजुकेटेड, दैट दे कैन बी देयर इन एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अब हम नए ट्रैप्स तैयार करने लगे हैं टू टेल वुमेन दैट अगर वो बाहर का काम करना चाहती है, वो नौकरी करना चाहती है, तो वो सब करे।
और उसका सबसे बड़ा ट्रैप है मल्टीटास्किंग का ट्रैप, जहां पे हम वुमेन को एवरी डे बताते हैं कि आप सब कर सकते हो। तो आप घर का काम भी कर सकते हो, आप सुबह 5 बजे उठकर घर का खाना भी बना सकते हो। जैसे इन्होंने 9 महीने की बात की, आई वुड से कि हर दिन हम वुमेन को बताते हैं कि आप सब कर सकते हो। तो आप घर भी संभालो, आप बाहर का काम भी करो और आप मल्टीटास्कर्स हो। मल्टीटास्किंग होना कोई बुरी बात नहीं है, हम सब मल्टीटास्कर्स बन सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रैप है, उस ट्रैप में फंसकर आज बहुत सारी महिलाएं अपनी लिबर्टी, अपनी सिविल लिबर्टी को खत्म कर रहे हैं, बिकॉज उनको भी ये दे आर कन्विंस्ड कि हम सब कर सकते हैं और जो घर का आदमी है, पुरुष है, वो सिर्फ काम कर सकता है, वो खाना नहीं बना सकता। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल मेरे खुद के गोवा का देना चाहूंगी कि गोवा में जितने भी रेस्टोरेंट्स है, जितने भी 5 स्टार्स है, उसमें जो चीफ शेफ है वो आदमी है। तो आदमी बहुत अच्छा खाना बना सकते हैं, हम उनके पैसे देकर हम उनका खाना खरीद सकते हैं, लेकिन घर का आदमी खाना नहीं बना सकता। बहुत सारी बातें हैं जो इस बारे में बोल सकते हैं हम व्हेन इट कम्स टू द लिबर्टी ऑफ वुमेन, लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे मेरा वक्तव्य रखना चाहूंगी, और वो है कि जो हम सब ने अभी बात की, आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग दैट वी आर अ डाइवर्स सोसाइटी, कि हमारा जो भारत देश है उसमें विविधताएं हैं, उसमें डाइवर्सिटीज है, और ये लैंग्वेज से लेकर अपने कल्चर, संस्कृति, फूड हो या हमारा पहनावा हो, इस सब में डाइवर्सिटी है। और जब तक हम ये डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम छोटे छोटे चीजों पर झगड़ते रहेंगे। और फिर ये छोटी छोटी चीजें कहाँ से शुरू हो जाती है, तो कहीं एक दिवाली की सुबह ईव ऑफ दिवाली के जो प्रोग्राम रहता है उसका नाम इरशाद रखे तो फिर हमको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। किसी एडवर्टाइजमेंट में अगर एक मुस्लिम फैमिली एक हिंदू कस्टम सेलिब्रेट करते दिखाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाता है। एक लेस्बियन कपल करवा चौथ करने का अगर एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो हमको प्रॉब्लम हो जाता है। सो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट वी आर डाइवर्स कंट्री। और जब मैं औरत और मर्द के बारे में बात कर रही थी तो हमको ये भी एक्सेप्ट करना है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द मेल एंड फीमेल जेंडर anymore. There are more genders in this society that we need to accept, and there are different sexual orientations in the society that we need to accept. तो जब तक हम एक दूसरे के इन फर्कों को, एक विविधताओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, I think we cannot speak about civil liberties. और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट, जब हम इन सब एडवर्टाइजमेंट्स पे या फिर एक कल्चरल जो भी प्रोग्राम्स होते हैं इस पर जो वाद होते हैं या फिर अपोज आता है, ये अपोज कौन करता है? कुणाल जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो अपोजिशन होता है उनमें से अगर हम 100% ले तो शायद 50% का अपोज सही रहेगा, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट सोशल मीडिया पे जो अदर 50% होते हैं, डू दे रियली एग्जिस्ट? क्या वो इंसान रियलिटी में है या फिर वो फेक प्रोफाइल्स है या फेक आइडेंटिटीज है जो क्रिएट किए हुए हैं? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो मॉब साइकोलॉजी है, जो हमको दिखता है कि इतने सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे अपोज किया, कमेंट किया, देयर आर थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ कमेंट्स कमिंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड कि उसमें से आधे लोग एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर जस्ट क्रिएटेड, दे आर क्रिएटेड एज फेक प्रोफाइल्स टू क्रिएट दैट मॉब साइकोलॉजी। तो मुझे लगता है कि जो ट्रोलिंग के बात हम हमेशा करते हैं, वी नीड टू डू अ पॉजिटिव ट्रोलिंग नाउ, जहां पे हम हमारा वक्तव्य पॉजिटिविटी से सोशल मीडिया या फिर ये सब मीडियम जो है वहां पे डाले। और मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके बताऊंगी कि किस तरह से ये पॉजिटिव ट्रोलिंग पॉसिबल है। देयर इज अ ब्यूटीफुल इंस्टा और फेसबुक पेज जिसका नाम है इंडिया लव प्रोजेक्ट। इस इंस्टा या फेसबुक पेज पे कोई वाद विवाद नहीं है या फिर कोई डिस्कशन नहीं है, वो हर दिन एक ऐसे कपल की स्टोरी वहां पे पोस्ट करते हैं विच इज अ इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियस मैरिज और सेम सेक्स मैरिज। और वहां पे ऐसी स्टोरीज हैं जो कल परसों की नहीं, कितने सालों पहले की स्टोरीज है। समवन इज राइटिंग स्टोरी अबाउट देयर ग्रैंडफादर, अबाउट देयर ग्रैंडमदर्स, और वो सिर्फ एक वक्तव्य करना चाहते हैं कि जो इंटर रिलीजियस या फिर इंटरकास्ट या फिर एक दूसरे के विविधताओं को एक्सेप्ट करने का जो हमारा प्रवास है या फिर हमारी जर्नी है, दैट इज नॉट अबाउट yesterday, इट इज सिंस अ लॉन्ग पीरियड। तो हम करते आ रहे हैं
just that we need to celebrate it even more today owing to the many things happening around us. तो मुझे लगता है कि अगर हम ये डाइवर्सिटीज एक्सेप्ट कर सके एक दूसरे की तो काफी चीजें सही हो सकती है. थैंक यू. I think Anvesha and Sarangi are both on civil rights, citizen versus citizen. Correct, no? Yes, I think it is almost like an individual right, citizen versus citizen, while Gopal Singh and Dr. Khairnar were dealing with the right of a citizen as against the state. I think the citizen versus citizen position can only be taken care of by education and progressive education. Correct. It is correct. Education and progressive education. While the citizen versus the state is what the state and the government will take care of. And that is the reason why in our constitution, at the time of formulating it, they had a chapter called Part 3 or Fundamental Rights, which they realized that it had to be protected from the state, from the government. And that is why it was called fundamental, so that the citizen is protected from the state. And I think in the past 2 years, that is where we are failing more. As far as citizen versus citizen, I think there is progress made. That is, it is improving. The position is improving. It will improve. But as far as the state is concerned, whatever progress we have made, I think we are falling back. With these few words, if from the audience, if somebody wants to say something, please be brief. Sandesh, be brief. One question. Isn't state made of citizens? Exactly. Yes, state is also made of citizens. And see, it is at what time you are. Like I would say, during emergency, time was different. Citizens were there. After emergency, it was the most liberal period. Even the judgments of the Supreme Court were very liberal. The courts and the Supreme Court and everybody takes a particular position depending upon how the society accepts it. Like we will find the 5-judge Ayodhya judgment, which was unanimous some 2 years back, may not have been so about 10 years back. It may have been different because the society at that time was different. Today we accepted the judgment because times are such. So I would say the times are such that we seem to suffer the dilution of our liberties. And that is where the world bodies and international bodies are saying that we are no longer a democracy, we are an elected autocracy. Now why are they saying so? Because there are, like you can say, VDAM Institute has some 30 million data points for 202 countries. So all these points are taken together to say that you are no longer a democracy. You are an elected autocracy because of certain things that are happening which don't fit into the democratic scheme. Any other? Yeah. सॉरी Yeah. वन मिनट. अयोध्या के जजमेंट को मैं ठीक जजमेंट नहीं मानता हूं. वो यूनानिमस हो या कुछ भी हो, वो भारतीय संविधान का ब्लंट वायलेशन है. आप खुद वकील है, आप खुद जज रह चुके हैं. उसको संविधान के तहत या कानून के तहत नहीं दिया गया है. ये जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं उसके प्रेशर में दिया गया जजमेंट है.
और भारत के जुडिशियरी के इतिहास का ये सबसे ब्लंट वायलेशन है। आलोक हूँ मैं, दिल्ली से हूँ और सिविल लिबर्टीज पे बात हो रही थी। दो युवा हैं और इन्होंने बड़े अच्छे से कहा। कुणाल जी ने कहा कि इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन्होंने कहा कि हम डाइवर्सिफाई वर्ल्ड की बात करें। ये बात इस फोरम तक तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लोहिया या सोशलिस्ट मूवमेंट जो है वो कह रहा है कि तलाशो अपने बीच में कौन हैव नॉट्स है, कौन वहां तक जानी चाहिए बात। इस हॉल में हम सब समझ रहे हैं इतनी बातों को, लेकिन एक मूवमेंट के ख्याल से हम वहां तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं जिनके लिए सिविल लिबर्टी की बात हो रही है। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि कहां कहां नहीं जा रही है, लेकिन हम क्या इससे ऐसा कोई तरंग पैदा कर सकते हैं अपने बीच में कि हम सब वहां चलने का एक संकल्प लें। और खास करके यूथ पे जो आप लोग कह रहे हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाल देते हैं लोग, तो जाहिर तौर पे वही है अगुआ। हाँ जी जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कोई इस फोरम से, सिविल लिबर्टी के उस फोरम से कोई बात ऐसी निकले, कोई ऐसा संकल्प पत्र जारी हो कि हम यहां से आगे चले। ठीक है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब समझते हैं, हम सब समझ रहे हैं कि डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, हम सब समझ रहे हैं कि एक्युमुलेटिव सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग इस हॉल से बाहर हैं जो यहां नहीं आ पाए, और उसके प्रति ही लोहिया हमें बार बार कहते रहे या जो भी कहे, हमारा ध्येय होना चाहिए क्या हम वहां जा रहे हैं, उन हैव नॉट्स को पुल आउट करके महेंद्र सिंह धोनी बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये सब। Yes. I am Kumar from Chennai. We were talking about civil liberty. Sir, I appreciate the wordings of Jharkhand gentleman Dhoni. Yeah, everybody wants to be Dhoni. By sitting in the hall, nothing is going to happen, sir. In Chennai, see, leave alone Chennai, the South India is lagging for water. Whether North India is flooded, the water has gone to the budget of every, whether common man or middle class family, high class family, water is in the monthly budget, grocery budget. See, more than that, if you permit me, I have a narration, sir. See, I want to talk to about the socialistic, all the feelings. Unless otherwise I go into the field, it's politicalized. Logia said, India is the agriculture country only. See, if you again permit, I don't want to take much more time. I have much more things. India is agricultural country only. Then only let us, see, you are talking about, just you said, yeah, unless otherwise we have growth. Growth can happen only through agriculture by individual satisfaction. When water is not given to the individual, how we are talking about growth, sir? If you permit me, I have narrations about Logia's policies that should go to that thing. Logia had MLA. See, I will tell you, we were the first people to form the government, coalition government. That too in this generation may not aware. In Kerala, with Achyut Patwardhan, with the two MLAs. See, we were the people to form the coalition government. See, those are the things, but just talking here is nothing. We have to play on the ground. I salute. Just naming the Maidan and having a statue is not the enough, sir. Yes. Oh, okay. Anybody else? Yes. Agni, here. My friend told me that government also is of citizens. Is it so? Government also is of citizens. State. Sorry, state. So, state is of citizens, or citizens form the state. It is a purely fraud. Though it is elected by the people and it is shown as the representative of the people and formed on the strength of the citizens, in reality, it is there to protect the interest of the ruling class. And when we are talking about Lohia and when we are talking about Jayaprakash Narayan and Lohia, they were in agreement with the Marxist interpretation of
materialist interpretation of history. So materialist interpretation says that the productive forces determine the course of history, and the production process is determined by the growth of technology and science. And my young friend rightly told, what is cryptocurrency? Cryptocurrency is globalization of the currency. So in that fashion, so my only anxiety was that to add state is a fraud. If it is stated that it is represented by the people, it is not so. It is there to protect the interest of the particular class, ruling class. Now now in India, the struggle between farmers and corporates, it is in reality struggle between two classes. One is dying class, another one is emerging class. Corporate is emerging class. And what is the role of capital? The role of capital is to invade the forms of properties of all types of forms of properties. So it intends to enter the agricultural field also. Farm also should be brought into into the arena of capital. Yeah. So now, I think we'll keep this Yes, sir. debate some other time. Yeah. yes, thank you. No, only to sell it. Yes, no issue. Yes, Mr. Thank you. सर मुझे लगता है कि ये जो सिविल लिबर्टी और जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ की बात है, हमारे सरकारों ने आज़ादी के बाद इसको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की स्टडी और लॉयर्स के दायरे में सीमित रखा। कभी भी स्कूलों में फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी की बातें या उस पर कोई छोटा टॉपिक या किताबों में कोई भी ऐसा नहीं किया गया, और ये पता नहीं किस मकसद से किया गया कि हमारे लोगों में अवेयरनेस पैदा होगा, बच्चों से को अपनी ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चलेगा तो वो खिलाफत पैदा करेंगे। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा इसका अवेयरनेस चालू हुआ है, और मैं समझता है कि हर स्टेट को क्लास 5-6 से ही फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज, एटलीस्ट नॉट अबाउट द पॉलिटिकल थिंग्स, बट ये फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में अगर किताबों में 2-4 चैप्टर हों तो वो एक अच्छा भविष्य भारत को मिलेगा। Yes, that is a good suggestion. Yes. मैं दीप्तिमान सेनगुप्ता हूँ और मैं नॉर्थ बंगाल से आया हूँ, कुछ बिहार जिला से। 1957 में मेरा पिताजी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे वो संग्राम के समय उन्होंने जेल भी गए। वो सम्मान कल हम लोगों को मिला, और ये मेरा माताजी है साथ में। गोवा सरकार ने इससे पहले भी उनको सम्मानित किया। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को दो चीज़ों को एक साथ करके हम देखें तो ऐसा है कि आज जो मार्क्सवाद की बात चल रही है, लेनिन की जो स्टैचू हम लोग देख रहे हैं, वो दोनों चीज उनमें एक साथ है। लेनिन का वो स्ट्रगल और मार्क्स का वो आर्थिक विचार, दोनों एक साथ उनमें कूट कूट के बढ़ा हुआ है। तो उसके बाद कल जब अनुष्ठान हो रहा था तो माननीय सीएम ने बोला 14 इयर्स के बाद यह सोच किसी में आया, क्यों हुआ? तो मैं उसके साथ और एक चीज जोड़ना चाहूंगा। आपने शायद सुना होगा कि 2015 में भारत का संविधान का संशोधन हुआ, 119तम। बांग्लादेश के साथ जो जमीनी विवाद था, वो जमीनी विवाद को लेके बहुत सारे लोग, करीबन 51,000 लोगों को कोई देश नहीं था, ना वो बांग्लादेश के था ना वो इंडिया के। और वो स्ट्रगल मेरे पिताजी ने शुरू किया
पिताजी 2009 पे गुजर गए, फिर मैंने नौकरी छोड़ दी 2008 से आखिर तक वो लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और जीत भी हासिल की। अभी बातचीत हो रही थी हम लोगों के सबके बीच में, समानता कैसे आए। समानता अर्थनीति से आ सकता है। मैं गोवा में आके एक चीज देखा कि गोवा में सब कुछ है पर ओला उबर नहीं है, नहीं घुस पाए। यह सबसे बड़ी चीज हमको अच्छा लगा कि इसका अभी भी गोवा में वो हिम्मत है कि घुसने नहीं दिया। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कॉरपोरेट के साथ किसानों की लड़ाई, ये लड़ाई भी जीतना कोई, मुझे लगता है, बाई प्रोफेशन आई एम ए शेयर ब्रोकर, मुझे लगता है कॉरपोरेट को अगर हम लोग चाहे कि उसको सुला दे। अब इंडिया में डीमैट हर कोई खोल सकता है। अगर हम लोग ये सरकार के पास दावी करें कि सरकार ने सबको जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दिया, वैसे सेबी से भी डीमैट अकाउंट बना दे, कोई एक एक कंपनी को चुने जो हम लोगों को चूस रहा है, उसका एक एक शेयर खरीदते हैं हम लोग। तो वो एक दिन अगर हम लोग ये मंच से घोषणा करें कि उस दिन उस समय हम सारे शेयर बेच देंगे, तो उससे पहले वो कंपनी बंद हो जाएगा, कॉर्पोरेट का लड़ाई वहीं से खत्म हो जाएगा। Yes, I think ये विचार जो है, ये विचार की बात जो है यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे लिए एक तीर्थ है। Some other time we can keep this discussion. Yeah. ঠিক আছে। দাদা খুব ভালো লাগলো তোমার কথা শুনে। আর কালকে একটা বইয়ের বিষয়ে আমি শুনেছি, ওই বইটা আমি কিনবো খুব জলদি, সালাজোরের জেলে 19 মাসে, ত্রিদীপ চৌধুরী যে বেঙ্গল থেকে ছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওনার বইটা কালকে জানা গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Yeah, very one small last. Yeah. मैं मोहन सिंह हूं, उत्तर प्रदेश से। मैं एक पत्रकार हूं, लेखक हूं। कल से जिस चर्चा की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसमें से डेमोक्रेसी की जो खामियां हैं उसके बारे में तो हम लोग बात कर ले गए, अभी तक उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक अघोषित तौर पर डिजिटल डिक्टेटरशिप भी चल रही है इस दुनिया में। और मैं एक उदाहरण देकर सिर्फ बात खत्म करूंगा, जिस पर हम लोग का ध्यान नहीं जा रहा है, और कितनी खतरनाक है कि आज के दुनिया को जो चौथी औद्योगिक क्रांति जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 4 चीजों से आएगी। एक तो आएगी रोबोटिक टेक्नोलॉजी से, दूसरा 3D से, थिंक ऑफ इंटरनेट से, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो इस डिटेक्टरशिप के बारे में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे डाटा प्रोसेसिंग में गलती होती है और कैसे आदमी को सजा मिलती है, और उसके लिए कोई डेमोक्रेटिक राइट्स, कोई ह्यूमन राइट्स की बात आज पूरी दुनिया में नहीं हो रही है। यह बात है इजराइल की। एक बहुत ही चर्चित किताब आज के दिन में आई है, 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी, युवाल नोआ हरारी की किताब है। सब बहुत चर्चित, दुनिया में सबसे बिकी जाने वाली किताब है। उन्हीं से ये सवाल मैं ले रहा हूं। एक फिलिस्तीन का बच्चा काम के जगह से एक पोस्ट करता है जहां बुलडोजर भी खड़े हैं, जेसीबी भी खड़ी है। सुबह के अपने पोस्ट में लिखता है अरबिक भाषा में, यस वेखम, इसका अर्थ होता है गुड मॉर्निंग। उसको डाटा प्रोसेसिंग में क्या समझाता है, यद वच्छम, हॉल्ट देम। बात समझ रहे हैं आप लोग? ये डिजिटल डेमोक्रेसी है, डिजिटल डिक्टेटरशिप है। होता क्या है कि इस डिक्टेटरशिप के बाद हमारे पास कोई आवाज नहीं है। इजरायली पुलिस आती है, उसको गिरफ्तार करती है, सजा देती है। सजा के तौर पर यह पुष्ट भी नहीं हो पाता कि किस नियम के तहत तुम्हें क्या सजा दी जाती है, और सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि हमारी नहीं, ये डिजिटल जो प्रोसेसिंग करने वाली उसकी गलती है। हम खुदा नुक्ते की हेर फेर से खुदा हो गया जुदा, इसका सुधार कर सकते हैं, डेमोक्रेसी का सुधार कर सकते हैं,
लेकिन ये कहने के लिए माफ करिएगा कि जो चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत जो हमारे सारे दुनिया में जो एक घोषित डिक्टेटरशिप आ रही है, उसके बारे में हमारा अभी कोई आवाज नहीं है और कुछ भी हम कहने की स्थिति में नहीं है। Yes, time is running out. I just want to remind all that the civil liberties issue was taken up by Lohia in 1936 in his book Struggle for Civil Liberties. I am reminding there was a foreword by Nehru, and these civil liberties which he had outlined became almost part 3 of the constitution, that is fundamental rights. And as we have seen, our democracy is now seen under strain. Gopal Singh said that after emergency, so many, not after emergency, I think after the Naxalite movement, many groups came up to defend the civil liberties. I think that time has come again, and I am just repeating, the farmers have redeemed the republic. Thank you. Thank you, everyone. I request everybody to kindly please be seated in the gathering, and the next session starts.